So today's topic is about the circulating charge particle. If a particle moves in a circle at constant speed, we can be sure that the net force acting on the particle is constant in magnitude and points towards the center of the circle, always perpendicular to the particle's velocity. ठीक है, ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है. ठीक है, कि जो फोर्स और वेलोसिटी होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है कोई भी पार्टिकल. थिंक ऑफ अ स्टोन tied to a string and railed in a circle on a smooth horizontal surface, or of a satellite moving in a circular orbit around the earth. In the first case, the tension in the string provides the necessary force and centripetal acceleration. You have learned already much about this in your previous classes. In the second case, Earth's gravitational attraction provides the force and acceleration. Okay. Because whenever there will be force, there will be acceleration. Figure 2810 shows another example. a, a beam of electrons is projected into a chamber by an electron gun G. The electrons enter in the plane of the page with speed v and then moves in a region of a uniform magnetic field B directed out of that plane. As a result, a magnetic force Fb, which is equal to q v cross b, continuously deflects the electrons. And because v and b are always perpendicular to each other, this deflection causes the electron to follow a circular path. The path is visible in the photo because the atoms of gas in the chamber emits light when some of the circulating electron collide with them. So let us first have a look on the next page in the figure so that you can understand the situation. Okay, this is the figure. So here is an electron gun here. This the electrons are given acceleration or by the application of the voltage. When this moves, the magnetic field is applied perpendicular to the motion of the charged particle. So in this way, because a magnetic field is directed into the page, okay, the velocity of the charged particle, it is always tangent to the circle in the case of centripetal acceleration, or in the case of circular motion, the velocity at that point will always be perpendicular will always be perpendicular. You can see here the magnetic field is in this velocity is in this direction and the magnetic field is in this direction into the plane of the page. So if this is the case, the magnetic force will always be perpendicular to both, because we already learned that F is equal to QV cross B. QV cross B. So V is in this direction and B is into the plane of the paper. Then the force acting on the particle will be towards the center of the circle. You can see from here.
So from if this is the case, the magnetic field that deflects the electron into a circular path. Okay, so in the circular path, the magnetic we can see the circle because all of this arrangement, all of this arrangement is in the container where there is a gas at very small pressure. When the electrons move inside this low pressure gas, these electrons which are emitting from the gun collide the gas atoms, and excitation and de-excitation of the atoms, gas atoms takes place. Due to this excitation and de-excitation, there is an emission of light. So you can see the light where the electrons go. So uh, these electrons, when they move in a circular path, the excitation and de-excitation in the gas is also, the excitation and de-excitation will also take place. Excitation and de-excitation will also take place in a circular path. So you can see the circular path in this experiment, okay, which is uh, the discussion of which is given on the previous page. So let's go back to the previous page. So this discussion of the figure is given in the second paragraph. You can see here, because magnetic force, because V and B are perpendicular, so the force acting on the charged particle will be perpendicular to V and B. Okay, so because B is into the plane of the paper and V is tangent to the circle, so the magnetic force will always be directed towards the center of the circle, because FB will always be perpendicular to V and B. Okay, so we would like to determine the parameters that characterizes the circular motion of these electrons or of any particle of charge magnitude q and mass m moving perpendicular to a uniform magnetic field B at speed v. So from equation 28.3, the force acting on a particle which has a magnitude of qv cross p. So Newton's second law, F is equal to ma, applied to the uniform to the uniform circular motion. So you know q is equal to v cross b, but that force is necessary centripetal force also. So we can equate those two equation and we get equation 28.15, that the magnetic force qvb, which was directed towards the center of the circle, is equal to mv square over r, which is the necessary centripetal force. Okay, so qvb is equal to mv square over r. So if you solve this equation, then v and v will be cancelled from both sides, and r will become equal to mv over qb. The radius of the path will become mv over qb. Now please go to the next page. So the radius of the radius of the path, or radius of the circular path, will become mv over qb. So this is equation 28.16.
So if we know the radius, we can calculate many other parameters of this circular motion. You know the period t, the time for one revolution, is equal to the circumference divided by the speed. You know distance is equal to velocity into time. And what is time? Time is equal to distance over velocity. So if you put the total distance of a circular path, which is 2 pi r, and if you divide it with velocity v, okay, then it you can see here, you can see here, okay, this 2 pi t is equal to this distance divided by this velocity. 2 pi over v is here, and we put the value of r from this equation here. R is equal to mv over qb. Then t becomes v, and v will be cancelled, and t becomes 2 pi m over qb. You can see from here that 2 pi are constant. M of electron, mass of electron, is a constant quantity. Q is also a constant quantity. So B here is the magnetic field strength. So if you know the value of magnetic field in this situation, which is given in the figure above, if you know the magnetic field, you can calculate the time period. So it will become so easy to calculate the time period. So if you know the time period, you can calculate the frequency, because frequency is 1 over t, 1 over time period. So it is 1 over time period. So it is, this was, time period was 2 pi m over qb, then frequency will become qb over 2 pi m. So it becomes the frequency. And if you know the frequency, you can calculate the angular frequency. Angular frequency is, 2 pi f. Okay, so 2 pi is f, and if you put the value of 2 pi, oh sorry, value of frequency here, then angular frequency becomes qb over m. This is angular frequency. So the quantities t, f and omega do not depend on the speed of the particle. क्योंकि देखें अब t के अंदर v की वैल्यू नहीं आ रही, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, t में यहाँ पर v की वैल्यू नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर v की वैल्यू नहीं आ रही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर v की वैल्यू नहीं आ रही. इट मीन्स t, f और omega do not depend upon the velocity of the particle, speed of the particle, provided the speed is much less than the speed of light. हम इतनी हाई स्पीड की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे. Fast particles move in large scales and slow one in a small large circle and slow one in small circles. But all the particles with the same charge to mass ratio take the same time to complete one round trip. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, R किस पर डिपेंड करता है, mv over qb पर. वेलोसिटी कम होगी तो उसका रेडियस भी कम होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ द वेलोसिटी इज मोर द रेडियस विल आल्सो बी मोर, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट. ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इफ यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड then the radius of the path will decrease. They are inversely proportional. If you decrease the value of magnetic field, R will be increased. So we can have many things in this formula which you can see. Okay, so using equation 28.2, you can show that if you are looking in the direction of B, the direction of rotation for positive circle is always counterclockwise. So if you, and the direction for a negative particle is always clockwise. So if you apply the left hand rule in this situation, then you can also see in which situation the particle will have clockwise or anti-clockwise direction. Next is
helical paths. If the velocity of a charged particle has a component parallel to the uniform magnetic field, the particle will move in a helical path about the direction of the field. अभी हमने ये देखा था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है. इस सिचुएशन में हमने ये देखा था. ये देखिए वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे. लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ना हो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही हो, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फिर बन जाएंगे. एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा. दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे अगर ये आपस में कोई एंगल बना रहे हो. अगर ये सिचुएशन हो तो Excuse me, sir. जी जी सर लेफ्ट हैंड रूल एक दफा दोबारा बता दें, वो रिपीट कर दें उसको. मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल आपको अपनी उंगली से नहीं बता सकता. आप लेफ्ट हैंड रूल में इस तरह करें कि जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें, ठीक है, और जो सेकंड फिंगर है, सॉरी, फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में रखें, ठीक है, यानी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर रखें फर्स्ट फिंगर, और सेकंड फिंगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें, ठीक है. तो आप देखें जो थंब है ना वो आपका क्लॉकवाइज जाएगा. ऐसा ही है ना, थंब क्लॉकवाइज जाएगा. समझ आ गई बात? यस सर. हाँ जी. तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इस तरह से होता है. अच्छा, अब आगे देखें. ये जो हेलिकल पाथ है इसमें नेक्स्ट पेज पे आ जाए. अभी हमने बात की कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पैरेलल होगा और एक परपेंडिकुलर होगा. ये किस तरह से है ये अब हम देखते हैं. और यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेलोसिटी अब परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि वेलोसिटी इसके साथ ये एक एंगल बना रही है. ये वेलोसिटी है, ये v, ठीक है, ये इसके साथ एंगल बना रही है. अब वेलोसिटी का ये अगर एंगल बना रही है तो ये उसका पैरेलल कंपोनेंट हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का. इसको हमने पैरेलल क्यों कहा? क्योंकि ये पैरेलल टू b है और ये परपेंडिकुलर टू b है, इसलिए ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है. तो जब ये चीज होती है, ठीक है, और हमें पता है कि जब ये 90 का एंगल बनाते हैं तो सर्कुलर पाथ बनता है. तो होता ये है कि वेलोसिटी का जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका अपना अपना रोल है. जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमेशा पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा, ठीक है. सर्कुलर पाथ में मूव कराने से इसका ये सर्कल बन गया, ठीक है. पर ये जो सर्कल बन रहा है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से बन रहा है, ठीक है. क्यों क्यू वी क्रॉस बी में अगर वी और बी परपेंडिकुलर हो तो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है. तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जब सर्कुलर पाथ को ऊपर की तरफ भी वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है, तो वो हेलिकल पाथ बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है. ये आप देख रहे हैं ये हेलिकल पाथ बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर ना हो बल्कि कोई एंगल बना रहे हो
तो चार्ज पार्टिकल फिर सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, हेलिकल पाथ में मूव करता है। अब इस जगह पे जो ये फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी आपको पता है टेंजेंट टू द सर्कल होती है, ठीक है, और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैं कर्सर से बता रहा हूँ आपको। कर्सर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे? बताएं सीआर, कर्सर देख रहे हैं आप? नो सर। नो सर, शो नहीं हो रहा। शो हो रहा है कुछ? यस सर, अब शो हो रहा है। यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पर देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी का एक कम, वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, कर्सर शो हो रहा है अभी? नो सर, हाइड हो गया। सर रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, सॉरी। अच्छा, ये आई डोंट नो, ये आपकी क्लास है ना, इसी में कर्सर शो नहीं होता, बाकी मैं दूसरी क्लासेस में लेता हूँ तो शो होता है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, I can do another thing, which is a spotlight. So you can see here is a magnetic field and here is the velocity. Magnetic field velocity is making an angle with the magnetic field. Okay, so velocity has two components. One is parallel component and one is perpendicular component. This parallel component is parallel to the magnetic field and this component is perpendicular to the magnetic field. So this perpendicular component, as we discussed before, this perpendicular component actually moves the particle in a circular path, and this component, parallel component, will move the particle in upward direction. So as a result the particle moves in a helical path. Okay, एक चीज को आप घुमा रहे हैं, ठीक है, एक चीज को आप घुमा रहे हैं लेकिन साथ एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रही है, तो वो घूमती हुई चीज जब ऊपर जाएगी तो वो हेलिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हेलिकल पाथ बनता है। इसका मतलब ये, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान कोई एंगल लेंगे अदर देन 90, ठीक है, तो वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा, और अगर 90 लेंगे तो फिर जस्ट सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। तो इसकी जो एक एग्जांपल है वो यूज की जाती है एक सिस्टम में, ठीक है। ये सिस्टम कहलाती है, इस सिस्टम में पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। वैसे अगर किसी पार्टिकल को ट्रैप करना हो तो आपके जहन में ये आता है कि इसको किसी कंटेनर में रख दें तो वो ट्रैप हो सकता है, ठीक है।
लेकिन अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, एक खास पैटर्न पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड हो, तो भी चार्ज पार्टिकल ट्रैप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो इस तरह से है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो होता ये है कि एक चार्ज पार्टिकल जब हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है कि उसको अंदर की तरफ पुश मिलता है। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया वो आगे की तरफ जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इधर कम हो जाती है। और कम मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये कि यहाँ पर सर्कुलर पाथ जो है वो ज़रा बड़ा हो जाए। ठीक है, और वो आगे की तरफ मूव करता हुआ आगे की तरफ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस। और जब मैग्नेटिक फील्ड इधर स्ट्रांग होती है तो ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी इस तरह से होती है कि वो इसको पीछे की तरफ रिपेल कर देती है। जब ये इधर मूव करता हुआ आता है तो ये इधर से रिपेल होकर इधर आ जाता है, और जब ये इधर जाता है तो पार्टिकल रिपेल होकर इधर आ जाता है, यानी पार्टिकल इसके सेंटर में तकरीबन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक बोतल। ये बोतल लाइक स्ट्रक्चर तकरीबन बनती है, तो ये मैग्नेटिक बोतल बनती है। इस मैग्नेटिक बोतल के अंदर पार्टिकल्स ट्रैप हो जाता है, यानी ये कोई ग्लास की बनी हुई बोतल नहीं है। ये जस्ट मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इस तरह से है। यहाँ पे जो ये एरो शो हो रहे हैं ये वाले, ये 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो और जो ये जो सर्कुलर पाथ में शो किया हुआ है ये चार्ज पार्टिकल का पाथ है। तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरह होते 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 जब यहाँ पे जाता है तो रिपेल होके इधर आ जाता है। ठीक है, और जब ये यहाँ से होते 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 इधर जाता है तो वो रिपेल होके इधर आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाता है इसके अंदर। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये कहलाती है मैग्नेटिक मिरर। ठीक है, मैग्नेटिक मिरर के देखिए जिस तरह से अगर इधर एक मिरर हो, इधर एक मिरर हो, और लाइट पहले यहाँ से यहाँ करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी, तो लाइट इस इन दो के दरमियान ही रहेगी, ट्रैप हो जाएगी इन दो के दरमियान। इसी तरह जो पार्टिकल है वो भी इन इसके और इसके दरमियान यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये यूज करते हैं फ्यूजन मशीन्स में, फ्यूजन रिएक्टर्स बनाने में। क्योंकि एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो फ्यूजन रिएक्टर्स बनाने में है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल का जो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं तो वो पार्टिकल कंटेनर के पार्टिकल से हिट करके उस कंटेनर के एटम्स को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है फ्यूजन रिएक्शन में। तो बजाय इसके कि हम ये करें, हम ये करते हैं कि उन पार्टिकल्स को जो जहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन करना हो वो उसको मैग्नेटिक बोतल के अंदर रख देते हैं यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, और ये मैग्नेटिक बोतल जो है ये मटेरियल की तो नहीं बनी हुई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है, इसलिए पार्टिकल यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो फ्यूजन रिएक्शन करवाने में जो प्रॉब्लम आती है इम्प्योरिटी ऑफ द कंटेनर की, वो इस तरह से रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये आप यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम इसको मैग्नेटिक मिरर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है मैग्नेटिक बोतल। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि जो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करता है उसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। तो इस बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। सर एक बार वो बता दें कि वो रिपेल कैसे होता है इलेक्ट्रॉन।